We are going to start a new course which is analysis of algorithm. So you have studied your two courses. One of them was fundamentals of algorithm. Then you studied the data structures. So this course is continuation of these two courses. Now, the name analysis or the term analysis, it shows that what will be the content of this course. The analysis is to explore something, to analyze something, to investigate something in details. So what is that thing? It is the algorithm. So here we'll be discussing various algorithms and then their analysis and so on. So first we start with the term algorithms. As you are well familiar with this, but to refresh your concepts, we are just giving an overview to the term algorithm. So an algorithm is a step-by-step solution of a problem, you know very well. So an algorithm is a set of instructions designed to perform a specific task. An algorithm is a finite sequence of well-defined computer implementable instructions, typically to solve a class of problems or to perform a computation. यानी कि algorithm क्या है कि it is a finite sequence of well-defined steps. यानी कि जो भी algorithm होगी, it will contain a finite sequence of steps. यानी कि वो जो steps होंगे वो finite होंगे, यानी कि they must end at certain point. And they should also be computer implementable, यानी कि वो जो steps हम define करेंगे they need to be implementable in computers programming language. So it is usually used for solving a class of problems. यानी कि जो algorithm होती है वो एक particular type का problem जो है वो solve करती है और it performs certain computation. So the term algorithm, you might be familiar with that, कि it is derived from the name of a mathematician al-Khwarizmi. तो उसके नाम से जो ये लैटिनाइज्ड हुआ algorithmy and then finally it become algorithm. ठीक है, तो ये जो टर्म algorithm है वो एक मैथमेटिशियन के नाम से निकला है. So in computer system, an algorithm is basically an instance of a logic written in software by software developers to be effective for the intended target computers to produce output from given input. अब computer system के लिए हम क्या बात करेंगे कि वो computer system के लिए वो algorithm क्या है. अब basically तो algorithm क्या है कि भाई it is a set of instructions. अब that may be written on by our hand on paper. ठीक है, अब उसका मकसद क्या होता है एक्चुअली. उसका मकसद ये होता है कि वो एल्गोरिथम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम में इट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड. उसका मकसद यही होता है कि वी राइट कंप्यूटर एन एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो उसकी पहले लॉजिक क्रिएट की जाएगी. लॉजिक यानी कि हमारे माइंड में उसकी सॉल्यूशन, हमारे माइंड में उसका प्रोसेस आएगा कि भाई दिस प्रॉब्लम will be solved in this way
For that, first we write the steps in simple language. सिंपल इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में जो है वो उसकी हम लॉजिक लिखेंगे. अब वो जो लॉजिक होगी वो सिंपल टर्म्स में हम लिखेंगे, यानी कि हम उसको किसी भी फॉर्म में पेपर पे हम उसको लिख सकते हैं. देन इट रिक्वायर्स, अब उसकी जो एल्गोरिथम होती है इट नीड्स इनपुट्स. वो जो स्टेप्स एल्गोरिथम के हैं when they are implemented in computers program, they also need certain inputs, because algorithm का जो purpose होता है वो ये होता है कि वो तो input को process करके उसका output हमें produce करके देता है. For example, अगर हम बात करें कि we need and we have a list of numbers, right, which is unsorted. We want to have a sorted list, यानी कि हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट है नंबर्स की जिसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब ये एक डिस्क्रिप्शन है किस चीज की, प्रॉब्लम की. हमने एक प्रॉब्लम डिफाइन किया कि भाई वी हैव अ लिस्ट, अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट वी वांट टू सॉर्ट, यानी कि हमें सॉर्टेड लिस्ट चाहिए. तो वो सॉर्टेड लिस्ट चाहिए किसकी, अनसॉर्टेड नंबर्स की. तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड द इनपुट टू दैट फॉर दैट एल्गोरिथम, यानी कि उसको एक इनपुट रिक्वायर्ड होगा. वो इनपुट क्या होगा कि भाई अनसॉर्टेड नंबर्स होंगे. देन एल्गोरिथम क्या करेगी, अब उस एल्गोरिथम में सर्टेन स्टेप्स होंगे दैट विल ट्रांसफॉर्म दैट अनसॉर्टेड लिस्ट इनटू द सॉर्टेड लिस्ट. अब वो उसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द सॉर्टेड लिस्ट. इनपुट क्या होगा, अनसॉर्टेड लिस्ट. अब वो जो एल्गोरिथम होगी, वो जो स्टेप्स होंगे वो क्या करेंगे, वो उन अनसॉर्टेड लिस्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे सॉर्टेड लिस्ट में. सो an optimal algorithm even running in old hardware would produce faster result. अब एक तो हो गई algorithm, ठीक है. algorithm simply हमने कहा कि it is a set of instructions which transforms input to the required output. ठीक है, एक तो ये है कि भाई फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जो कि हमें जो इनपुट हम देते हैं उसको आउटपुट पे ट्रांसफॉर्म कर देती है. फिर आती है, ये बात होगी एल्गोरिथम की, फिर आती है ऑप्टिमल एल्गोरिथम. अब हमारा जो इस कोर्स का एक्चुअली पर्पस है वो है ऑप्टिमल एल्गोरिथम. वी नीड ऑप्टिमल एल्गोरिथम, यानी कि एक तो एल्गोरिथम है कि भाई वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, दैट्स इट. ठीक है, लेकिन ऑप्टिमल का ये है कि वो हमें बेस्ट सॉल्यूशन दे. यानी कि बेस्ट सॉल्यूशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने सॉर्टिंग की बात की, इनपुट हम दे रहे हैं अनसॉर्टेड नंबर्स, फिर एल्गोरिथम हमें उसको सॉर्ट करके दे रही है. अब वो सॉर्टेड जो दे रही है तो we may have different algorithms for that. सॉर्टिंग की हमने एल्गोरिथम्स पढ़ी हुई है. फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट जो सबसे कॉमन एल्गोरिथम है, ये एक एल्गोरिथम है, वो सॉर्ट करती है नंबर्स को जो है उसमें ऑर्डर में, एक बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है. उसके अलावा हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है. दीज आर डिफरेंट एल्गोरिथम्स. अब देखिए, जब एक सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, स्टिल वी आर गोइंग फॉर
new solution. So what is the reason behind that? क्यों हम जा रहे हैं भाई भाई सॉर्टिंग की हमारे पास अगर एक सोल्यूशन मौजूद है तो हम छोड़ दें, क्यों हम टाइम उस पर ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं उसको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए. तो द रीजन इज कि वी आर इन सर्च ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन. हमारा हर वक्त हमारी जो सर्च होती है, खोज होती है कंप्यूटर साइंटिस्ट की कि भाई वी वांट बेस्ड सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस. सो ऑप्टिमल एल्गोरिथम क्या है कि अब सॉर्टिंग की हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स है. अब विच वन इज मोर ऑप्टिमल, यानी कि अब उसमें से ऑप्टिमल कौन सी है, बेस्ड कौन सी है. अब ऑप्टिमल हम कह रहे हैं, बेस्ड इन व्हाट टर्म्स. पहले हमें तो ये डिफाइन करना होगा कि बेस्ड हम किसको कहते हैं, किस क्या पैरामीटर्स हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए. क्या चीजें हैं जिनकी बिना पे हम किसी एल्गोरिथम को कहेंगे कि भाई ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रही है या नहीं दे रही. तो यूजुअली एल्गोरिथम्स और हमारा जो कंप्यूटर है, इट रिक्वायर्स टू कॉमन रिसोर्सेज. कोई भी प्रोग्राम है या जो एल्गोरिथम है, इट रिक्वायर्स द two main resources. These two resources are, they are time and space. Time required to perform the steps of that algorithm, या the number of steps. दूसरा जो है वो space needed to store the data structure for that algorithm. ठीक है. तो ये दो रिसोर्सेस हैं. तो अगर हम किसी भी एल्गोरिथम को कहेंगे कि भाई इट गिव्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो आप कहेंगे कि भाई इन दिस टर्म, इन दीज टर्म्स ये हमें जो है वो सॉल्यूशन दे रहा है. वो इन इन इस वजह से, यानी कि टाइम की वजह से या जो स्पेस की वजह से, दिस एल्गोरिथम इज ऑप्टिमल algorithm. So in optimal algorithm, even running in old hardware would produce faster results than a non-optimal higher time complexity algorithm for same purpose running in more efficient hardware. बात समझ में आ रही है कि एक ऑप्टिमल एल्गोरिथम क्या होगी कि हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है. एक फास्ट हार्डवेयर है जिसका, यानी कि फास्ट मशीन है, फास्ट सिस्टम है, न्यू टेक्नोलॉजी पे जो है वो बेस करता है. दूसरे जो है वो ओल्ड मशीन है, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि अगर एल्गोरिथम हमारी ऑप्टिमल है तो वो ओल्ड या जो है वो स्लो मशीन पे भी बेहतर सॉल्यूशन देगी, लेकिन जो नॉन ऑप्टिमल है वो बेस्ड या जो है फास्ट हार्डवेयर पे भी उसकी जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहेगी. तो वी लुक फॉर द we usually look for the optimal or based solutions. So an optimal algorithm क्या कह रहा है कि भाई वो हमें जो है वो ओल्ड कंप्यूटर यानी कि स्लो हार्डवेयर पे भी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस देगी, जबकि नॉन ऑप्टिमल जो एल्गोरिथम है वो हमारे भले कितना भी एफिशिएंट हार्डवेयर क्यों ना हो, उसकी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो स्लो होगी. So the characteristics of an algorithm, you are familiar with these characteristics, so I'm just going to highlight them. So every algorithm needs input,
it has finite number of steps, it should be clear and understandable, it should be language independent, the steps of algorithm should be unambiguous, यानी कि वो steps clear हो, unambiguous हो, हमें पता होना चाहिए कि भाई वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। देन वो वेल डिफाइंड आउटपुट प्रोड्यूस करे, यानी कि उसका जो आउटपुट हमें पता लगे कि भाई वो उसका आउटपुट क्या होगा, वो जर्नल होनी चाहिए। जर्नल का मतलब है कि जो अल्गोरिथम है वो स्पेसिफिक इनपुट पे डिपेंड ना करे, यानी कि 4 वैल्यूज पे के लिए हमको वो बनाए तो वो हमेशा उन्हीं 4 वैल्यूज पे वर्क करे, नो, वो जर्नल होनी चाहिए, वो एक सेट ऑफ क्लास ऑफ इनपुट पे उसको काम करना चाहिए, यानी कि वो स्पेसिफिक इनपुट के लिए ना होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस, ईच स्टेप में बी परफॉर्म्ड इन द फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि हर जो स्टेप है उसका जो रनिंग टाइम है वो फाइनाइट होना चाहिए। Then we see various approaches for problem solving, किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। So there are many approaches for solving a problem. How do we choose between them? अब तो different approaches हो सकती हैं। At the heart of computer program design are two sometimes conflicting goals. To design an algorithm that is easy to understand, code and debug. अब देखें, understand, try to understand this point. कि हमारा पर्पस क्या है कि भाई एल्गोरिथम डिजाइन करें जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू कोड हो और इजी टू डिबग हो। दूसरा गोल, ठीक है, अब वो ये है कि भाई डिजाइन एन एल्गोरिथम दैट मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर्स रिसोर्सेज। अब दो गोल हो सकते हैं, क्या कि एल्गोरिथम ऐसी हो जो कि इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कोड एंड इजी टू डिबग हो, ठीक है। दूसरा क्या है, an algorithm that makes efficient use of computer's resources। दूसरा गोल हमारा ये है कि जो efficient use of computer resources करे। अब ये है कि हम किस अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। जब हम बीइंग कंप्यूटर साइंटिस्ट जब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हमारा जो गोल शुड बी द सेकेंड वन। वो क्या है कि इट शुड मेक एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब वो कंप्यूटर रिसोर्सेज कौन से हैं? द टू रिसोर्सेज आर द टाइम एंड स्पेस, ठीक है। तो वो हमारा गोल जो होना चाहिए वो इट शुड बी टू मेक the efficient use of computers resources. Then अब हमने जब शुरू में डिफाइन किया कि भाई कंप्यूटर एक एल्गोरिथम क्या है, इट इज ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हमने जस्ट ये कहा कि भाई सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। नाउ वी सी द एफिशिएंट सॉल्यूशन। अब बात आ रही है एफिशिएंट सॉल्यूशन की। एक तो है सॉल्यूशन, यानी कि हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी एल्गोरिथम, ठीक है। अब बात आ रही है एफिशिएंट सॉल्यूशन। So a solution is said to be efficient if it solves the problem within the required resource constraints. So what does this mean? As we discussed, there are two main resources of computers, which are time and space. A solution is said to be efficient if and only if when that problem is solved within required resource constraints, यानी कि हमने लिमिट लगाई हुई है टाइम और जो स्पेस कंजम्पशन की। अगर वो सॉल्यूशन उस स्पेसिफाइड टाइम कंस्ट्रेंट्स में जो हो रही है, सॉल्व हो रही है, तो वो सॉल्यूशन क्या है?
एफिशिएंट सॉल्यूशन है। यानी कि हमारे जो स्टेप्स हैं, वो जो एल्गोरिथम है, अगर हमारी जो रिक्वायर्ड टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं उनमें सॉल्व हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इट इज एफिशिएंट एल्गोरिथम। Example of resource constraints include the total space available to store the data. अब resource constraints में अब ये depends कि हमारे resource constraints हमने क्या define किए हैं। It may be the available total space to store the data, possibly divided into separate main memory and disk space constraints. अब उनको भी स्पेस को भी हम दो जो मेन मेमोरी और जो है वो डिस्क या जो है वो जो हार्ड डिस्क स्पेस है उनको सेपरेट डिफाइन करें। एंड द टाइम अलाउड टू परफॉर्म ईच सब टास्क। ठीक है, अब जो रिसोर्सेस हमारे आ गए उसमें स्पेस कौन सी, मेन मेमोरी की, हार्ड डिस्क की। यूजुअली हमारा जो कंसर्न होता है वो मेन मेमोरी यानी कि जो हमारी रैम की स्पेस है या प्राइमरी मेमोरी की स्पेस की बात कर रहे होते हैं। दूसरा जो है वो टाइम अलाउड टू परफॉर्म ईच टास्क। अब वो जो स्टेप्स हैं एल्गोरिथम्स के, वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं या टोटल कितने जो है वो स्टेप्स हैं। अब हम आगे चल के देखेंगे कि वो हर चीज हर एल्गोरिथम के लिए क्या मीन रखती है। So a solution is sometimes said to be efficient if it requires fewer resources than known alternatives, regardless of whether it meets any particular requirements or not. The cost of a solution is the amount of resources that the solution consumes. अब जो बात आ रही है रिसोर्स कंजम्पशन की, दो वो रिसोर्सेज हमारे कौन से हैं, स्पेस एंड टाइम। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ एन एल्गोरिथम और कॉस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि एक एल्गोरिथम जो हम पहले तो हम सिर्फ एल्गोरिथम की बात कर रहे होते थे कि भाई ये एल्गोरिथम है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ एन एल्गोरिथम, कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वो कॉस्ट में क्या चीजें मैटर करती हैं? दे आर द अमाउंट ऑफ रिसोर्स कंजप्शन। वो रिसोर्स कौन से हैं? जो कि हमारी स्पेस है, और दूसरा क्या, टाइम। अब टाइम हम जो डिफाइन करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, या जो है वो हम उसको डिफाइन करेंगे जो वो एक्चुअल टाइम लग रहा है। लेकिन हम एक्चुअल टाइम को यूजुअली नहीं यूज करते, क्योंकि एक्चुअल टाइम जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम हार्डवेयर टू हार्डवेयर। पर जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं, that is actually the time cost of an algorithm. Most often cost is measured in terms of one key resource such as time. अब यहाँ पे ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हों और कोई स्पेसिफिक रिसोर्स का नाम बताया जाए, तो यूजुअली वी कंसीडर द टाइम। ठीक है, टाइम या नंबर ऑफ स्टेप्स, with the implied assumption that the solution meets the other resource constraints as well. यानी कि जब हमें वो मोस्टली हमारा जो रिसोर्स होता है वो टाइम होता है, पर हमें ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि भाई हाँ, अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये एल्गोरिथम जो है वो एफिशिएंट है, तो वो टाइम के हवाले से एफिशिएंट है। पर
साथ में जो उसकी जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो भी अफोर्डेबल है. So this is what about this is all about the efficient solution. यानी कि पहले हम बात कर रहे होते थे सिंपल सॉल्यूशन की, एल्गोरिथम की बात कर रहे थे कि भाई एल्गोरिथम क्या है, इट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. अब ये है कि एफिशिएंट सॉल्यूशन. एफिशिएंट सॉल्यूशन क्या है कि भाई सॉल्यूशन दैट इज डन विदिन द रिक्वायर्ड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स. वो जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, रिक्वायर्ड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? दे इंक्लूड द टाइम एंड स्पेस. नाउ the data structures and algorithms. The data structures and algorithms. These two terms are often used altogether. जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर की जब बात होती है तो साथ में algorithm की जरूर बात आती है, या जब algorithm की बात होती है तो डेटा स्ट्रक्चर्स की बात भी जरूर आती है. So representing information is fundamental to computer science. जब जाहिर बात है हम कोई भी सॉल्यूशन हम बनाएंगे कंप्यूटर पे तो उसके लिए हमें जो डेटा है उसकी रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट. So the primary purpose of most computer programs is not to perform calculations but to store and retrieve information, usually as fast as possible. Mostly आपने देखा होगा कि computers are being used in most of the organizations, in offices, in workplace. आपने देखा होगा कि computers हर जगह पे यूज हो रहे होते हैं. तो क्या हर जगह पे जो लोग हैं वो डिफरेंट कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं? नहीं. उनका जो मेन जो पर्पस होता है कंप्यूटर यूज करने का वो होता है कभी रिकॉर्ड्स को स्टोर करना और उसको रिट्रीव करना एज फास्ट एज पॉसिबल. यानी कि मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो बिजनेसेस हैं उनमें कंप्यूटर के यूज का पर्पस ये कंप्यूटेशंस नहीं होती है. वो कंप्यूटेशन मोस्टली जो है वो पर्पस होता है कंप्यूटर साइंटिस्ट का. मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर रही होती है कंप्यूटर्स को तो उनमें उनका पर्पस क्या होता है? टू स्टोर द रिकॉर्ड्स, टू स्टोर द डेटा, to store the information and retrieve that information as fast as possible. The study of the data structures and the algorithms that manipulate them is at the heart of computer science. कंप्यूटर साइंस की जो स्टडीज में जो रोल है एल्गोरिथम्स का और डेटा स्ट्रक्चर्स का, दैट इज द कोर और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस. यानी कि अब जाहिर बात है वो जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो डेटाबेस यूज हो रही हैं या जो रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं? Behind the scene, algorithms are being executed. The data structures are being used. अब वो जो यूज कर रहा है, जो यूजर है, उसको आइडिया नहीं है कि भाई डेटा स्ट्रक्चर क्या है या कोई क्या एल्गोरिथम यूज हो रही है. वो जस्ट क्या कर रहा है भाई, वो की देता है, उससे वो रिकॉर्ड रिट्रीव होता है, या जो है वो डेटा जब वो उसको सेव करनी है तो वो जब डेटा प्रोवाइड करता है वो डेटा जाके इंसर्ट हो जाती है. अब वो कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, तो वो विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम बिहाइंड द सीन क्या चल रही है? एल्गोरिथम्स. वो किसने प्रोवाइड की? कंप्यूटर साइंटिस्ट ने डेफिनेटली. तो जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनमें उसका जो कंप्यूटर का यूज हो रहा है या डेटाबेसेस का, तो वहां पे एल्गोरिथम्स गिवन है.
डेटा स्ट्रक्चर गिवन है, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता उन चीजों पे कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बस जो हम प्रोवाइड कर दिया गया सिस्टम, वो जस्ट उस पे जो है वो डेटा स्टोर करेंगे, यानी कि न्यू रिकॉर्ड आया वो उसमें इंसर्ट करेंगे। अब कैसे हो रहा है, यू नो दोज एल्गोरिथम्स, कि भाई उन एल्गोरिथम्स की मदद से इंसर्शन परफॉर्म हो रही है, तो कैसे परफॉर्म हो रही है, डेटा कहाँ पे जाके स्टोर हो रही है। अब वो जो यूजर बैठा हुआ है उसका कोई उससे लेन देन नहीं, वो जस्ट उसको जो है वो इंसर्ट कर रहा है, डेटा दे रहा है। पर वो एक्चुअली किसने दिया, वो किसी एल्गोरिथम की मदद से हुआ, तो वो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने दिया। पर जो यूजुअली जो आम यूजर्स हैं उनके लिए उन एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर वो कोई मीनिंग नहीं रखता। पर फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट डेफिनेटली वो जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दी है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ही करके दी हुई